Greetings to all students. मेरा नाम विनीत है. This is our lecture series of polynomial. In today's lecture, we are going to discuss about zero of a quadratic polynomial. So this is our lecture 6 of the lecture series of class 10 polynomial. I'll suggest the students who are new to the channel should first go and watch the previous videos and then come back to this video. Alright, let us start our topic. So zero of a polynomial. Let us discuss what is zero of a polynomial. Let me recall first what we have discussed so far. So earlier we have seen what are standard forms of different types of polynomial, classification of polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, and later we have discussed one more topic. We have discussed zero of a linear polynomial, how to find zero of a linear polynomial, and also we have derived the formula for it. So now we are going to discuss, extending the same topic, we are going to discuss how to find the zero of a quadratic polynomial. Alright. So what is the method to find the zero of a quadratic polynomial? Alright. So method remains the same. As I have told you, we have discussed earlier. So we have to consider the polynomial p of x square plus 7x plus 12 here, and then I have to write the polynomial as p of x is equals to 0. I have to equate the polynomial with 0 to find the value of, to find its zeros. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेट करता हूँ 0 से. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, p of x के नीचे अपना polynomial लिखता हूँ, and then after this step I do solving. What I do? I do solving. So guys, पिछले linear polynomial में हमने देखा था solving was pretty easy, right? That was basic solving. अभी हम देखने वाले हैं कि quadratic polynomial में हम solving कैसे करते हैं. Alright, solving means finding the value for x. Alright, इससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं. Since it is a quadratic polynomial, I would like you to tell me कि quadratic polynomial के कितने जीरो होते हैं. Alright, you can think and answer in your mind. So quadratic polynomial के दो जीरो होते हैं. Okay, let us say अगर polynomial है जिसकी डिग्री, since linear polynomial की डिग्री 1 है तो उसके जीरोस कितने हैं, 1 जीरो हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके जीरो कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे. वैसे ही क्यूबिक के 3 है डिग्री तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे. सो वी हैव टू फाइंड द जीरोस. नाउ वी मेक यूज ऑफ अ मेथड. ओके, द मेथड नेम इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का हम यूज करते हैं. फैक्टराइजेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. वेरी पॉपुलर मेथड. हम इसको कैसे यूज करते हैं, चलो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल. सो लेट मी गिव यू द ग्लिम्स what we are going to do and then we are going to discuss the method. So basically factorization का मतलब क्या है, the word itself is telling factorization मतलब क्या, factors में convert करना, एक particular expression को factors में convert करना. Alright, आपने already पढ़ रखा है factors क्या होते हैं. जैसे कि let us suppose I have this number 18. Okay, 18 का अगर मैं prime factorization करता हूँ तो मुझे पता लगेगा इसके कितने फैक्टर्स हैं. ऑलराइट, सो ये प्राइम नंबर्स हैं, ये इसके कितने फैक्टर्स हैं. तो मैं क्या बोलूँगा, यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 18. नाउ इफ आई कंबाइन द टू नंबर्स, इफ आई मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, 3 into 3 9, that will also be another factor. Similarly, if I combine 3 into 2 6, 3 into 2 6, that will also be another factor. Similarly, 3 into 3 9, 9 2s are 18. If I combine all, I'll get 18. 18 is also a factor. Alright, तो अभी हमने देखा factors क्या होते हैं. So 18 के factor है 2 है, 3 है, again 3 into 3 9 है, 3 into 2 6 है, 3 into 3 9, 9 2s are 18, 18 है. So these are all factors. So what we are going to see in the topic, हम क्या करने वाले हैं, जो expression दे रखा है इधर, हम expression को एज अ फैक्टर लिखें. फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऑफकोर्स ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो कि ये पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर देगा. ऑलराइट, वो ऐसा नंबर होता है कि वो नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है. सो इसीलिए मैं उसको फैक्टर कहता हूँ. 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18 बिकॉज 2 डिवाइड्स 18, राइट. 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18 बिकॉज 3 डिवाइड्स 18. सो सिमिलरली हियर आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस पॉलिनोमियल into factors. ओके, मैं देखने वाला हूं कि इसके फैक्टर्स
क्या क्या होंगे। ओके, सो मैं क्या करूंगा, माई ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल, एंड वंस आई नो द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आई कैन ईजिली फाइंड माई जीरोस। ऑलराइट, सो मेरा ऑब्जेक्टिव है पहले तो इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। ऑलराइट, let us see our method now, how to convert the polynomial into a factor. And one more thing, here we are converting factors. So factor मतलब कितने, अभी मैंने बताया आपको कितने जीरोस होंगे इसके, डिग्री 2 है तो हमारे पास जीरो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस भी होंगे और 2 फैक्टर्स भी होंगे। ऑलराइट, 2 जीरोस भी होंगे और 2 फैक्टर्स भी होंगे। लेट अस सी हाउ टू फाइंड आवर फैक्टर्स। आप देख सकते हैं इधर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, p of x is equals to xy plus 7x plus 12. Here we are given a quadratic expression. So आपको क्या करना है, जो स्टेप्स जो हैं उनको नोट करते जाना है और आपको सेम तरीके से अपने स्टेप्स को अप्लाई करना है एग्जाम में। ऑलराइट, सो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो पहला स्टेप क्या है, जल्दी जल्दी सुनते जाइए बस, बहुत ईजी है। टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म क्या है इसका x स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है 12, सो x स्क्वायर 12, सो x स्क्वायर इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। राइट, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 12x स्क्वायर, माई प्रोडक्ट इज 12x स्क्वायर। ऑल राइट, we'll keep this product like this only and we'll utilize it later. All right, now what we have to do, whatever the product that we have got here, we just have to consider the number, we have to avoid the variable for a moment. Okay, so variable को आप avoid करिए और ये number पे focus करिए। number क्या है, 12 है। all right, मेरे को क्या करना है next my second step is do prime factorization and find the two ideal factors। तो मेरे को क्या करना है, वो पर्टिकुलर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो अगर ये 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आपको सबको मालूम है, ये 2 6 2 3। सो मेरे ये फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो मेरे 2 2 3 फैक्टर्स हैं। नाउ आई विल राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। आफ्टर दैट आई हैव टू क्लब द नंबर्स। मैंने क्या बोला, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये सारे नंबर्स ज्वाइन करके ये पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर निकालना पड़ेगा। नाउ ये फैक्टर निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम निकालेंगे, बट मेरे को खाली और खाली 2 फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, मेरे को 2 फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, और ये 2 फैक्टर होनी चाहिए आइडियल फैक्टर्स गाइस। सो आइडियल फैक्टर क्या होता है, विल डिस्कस दैट। बस आप ये समझ जाइए, मेरे को 2 फैक्टर्स चाहिए बस, अब वो 2 आइडियल फैक्टर होने चाहिए। दैट नाउ नेक्स्ट विल सी how to look for ideal factor. Now very important step, next step is to look for ideal factor. हमें ideal factor ढूंढना है। अगर मैंने ideal factor अपना ढूंढ लिया अच्छे से, मेरा 80% of the problem is done. All right, so this is the crucial step. All right, so आप ध्यान से सुनिए। next हम देखते हैं ideal factor को हम कैसे ढूंढते हैं। All right, next, now here you can see 12 is there, we have done prime factorization of it, and now you can see 2 into 2 into 3. now you can see here मैंने क्या किया है, इधर 2 into 2 को कंबाइन करके 4 लिख दिया है और 3 को एज इट इज रखा है, और मैं इधर कह रहा हूं कि मेरे जो आइडियल फैक्टर्स निकल के आए वो हैं 4 और 3। ऑलराइट, 4 और 3 ये 2 नंबर्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, ये मेरे आइडियल फैक्टर्स हैं। नाउ आपको क्या करना है, ये ऑफकोर्स ये 12 था, 12x स्क्वायर था, सो ऑफकोर्स मैं 4 into 3 करूँगा तो मेरा 12 आएगा। तो मेरे को क्या कर देना है, सिंपली ये जो x स्क्वायर है 12 तो मेरे को आ गया। नाउ इधर x मेरे को पुटअप कर देना है, सो 4x into 3x क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मेरा प्रोडक्ट आ गया। सो नाउ हियर यू सी जो मेरे आइडियल फैक्टर मैंने गेस किए हैं अभी। नाउ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाउ soon you will understand why I am taking this ideal factor, right? So be patient and listen why I am taking this only as a ideal factor, right? So 4x 3x मैंने ले रखा है, so ये क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट 12x स्क्वायर हो जाएगा। Now if I add them, what I am getting, 7x. Now what is 7x? 7x क्या है? Now if you see the polynomial, this is my given polynomial xy plus 7x plus 12. Now here the middle term that you are seeing, that is 7x, and here जो आप देख रहे हो 4x plus 3x मैंने किया है, ये जो सम ऑफ द 2 फैक्टर्स आइडियल फैक्टर का मैंने सम निकाला है वो भी क्या आ रहा है, 7x आ रहा है। इसका मतलब क्या,
जो मेरा सम होना चाहिए दो आइडियल फैक्टर का, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 7x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 7x से इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए था वो किसके इक्वल होना चाहिए, 12x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें देखना है, हमें ये दो चीज़ों को वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं। तो इधर आप देख पा रहे हैं जो मैंने सम निकाला है ऑफकोर्स मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है, और ये जो प्रोडक्ट निकाला है ये किसके इक्वल आ रहा है, 12x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू, नाउ इफ यू रिकॉल व्हाट इज दिस 12x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर क्या था मेरा, दिस 12x स्क्वायर was actually my first step, that is taking product of first and last term. All right, so I am using that step here. So जो मेरा फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट था 12x स्क्वायर, उसके इक्वल मेरा आइडियल फैक्टर का प्रोडक्ट होना चाहिए ऑलवेज। सो इधर मेरे आइडियल फैक्टर का प्रोडक्ट ऑफकोर्स 100% उसके इक्वल आ रहा है, राइट। और मेरा जो सम है आइडियल फैक्टर्स का वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है मिडिल टर्म के इक्वल। यस गाइस, सो यही दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन हमेशा ट्रू रहनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ओनली आई हैव टू पिक माई टू आइडियल फैक्टर्स, आई हैव टू पिक माई टू आइडियल फैक्टर्स। सो सभी लोग को ये कंडीशन, दो कंडीशन को ध्यान रखते हुए अपना आइडियल फैक्टर बनाना है। अभी देखो जैसे कि मैंने 12 लिखा था इधर 12, नाउ 12 कितने मेरे पास फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, मैंने खाली 2 और 2 को कंबाइन करके 4 लिया। नाउ इफ आई विश टू टेक अदर नंबर ऑल्सो आई कैन टेक 2 इंटू 3, आई कैन टेक 2 इंटू 3 ऑल्सो। लेट अस से 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6 हुआ, 6 और ये 2, सो 2,6 अगेन इज माई टू आइडियल फैक्टर्स। यस, इज इट? लेट अस चेक इट वंस। क्या कंडीशन थी आइडियल फैक्टर की, कंडीशन ये थी कि जो इनका सम है वो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है क्या सम, 2 + 6 क्या हो रहा है, 2x + 6x क्या हो जाएगा, 2x + 6x क्या हो जाएगा, 8x। तो क्या ये इक्वल आ रहा है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म तो 7x है मेरा, मिडिल टर्म ये है, मिडिल टर्म क्या है मेरा 7x है, मिडिल टर्म 7x है, तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। सो दिस इज नॉट राइट, 2x 6x नहीं हो सकते। या प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं 2x इंटू 6x 12x स्क्वायर प्रोडक्ट आ रहा है, ऑलराइट प्रोडक्ट आ रहा है, बट इसमें से अगर एक भी मेरा कंडीशन नहीं वेरीफाई हुआ, सो आई विल नॉट कंसिडर दैट एज माई फैक्टर्स, आइडियल फैक्टर्स। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग 4x and 3x only as my ideal factors because it satisfy both of the condition. Alright, so these are the two criteria to consider the ideal factor. Alright, I hope सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। Alright, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मैं क्या करूंगा, वो जो दो मेरे आइडियल फैक्टर्स हैं मैं उसको क्या करूंगा, अपने पॉलिनॉमियल के मिडिल टर्म से रिप्लेस करूंगा। मिडिल टर्म मेरा क्या था, 7x था। नाउ इधर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए मेरी कंडीशन थी कि जो दोनों मेरे आइडियल फैक्टर के सम होने चाहिए वो हमेशा मिडिल टर्म के इक्वल होने चाहिए, राइट। इसीलिए मैं इधर क्या करता हूँ, मिडिल टर्म को एज अ सम ऑफ टू आइडियल फैक्टर्स लिखता हूँ। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, 7x को मैं कैसे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को मैं कैसे लिखूँगा इसे, मैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को लिखूँगा ऐसे, x स्क्वायर + 3x + 4x + 12। ऑलराइट, मैंने रिप्लेस कर दिया, +12 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ गाइज इसके आगे हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम हो चुका है। इसके आगे जस्ट आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन निकालते हैं, राइट। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म में कॉमन क्या आ रहा है आप देखिए, इजीली बता सकते हैं, x कॉमन है इधर, तो x मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर बचेगा x, इधर बचेगा 3, x + 3। अगेन सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म के साथ भी सेम करना है, 4 कॉमन निकालना है, अंदर बचेगा x, अंदर बचेगा 3, x + 3। नाउ इधर एक कंडीशन है, अगर आपको ये x + 3 इधर पे, अगर आपको ये x + 3 इधर आ रहा है जो, और जो इधर x + 3 आ रहा है, ये दोनों सेम है, तो आपका प्रॉब्लम सही है। ओके, आपके जो आइडियल फैक्टर्स हैं वो 100% करेक्ट है। बट अगर इधर ये जो दो कॉमन मेरे बाइनॉमियल्स हैं, अगर ये मेरे कॉमन सेम नहीं आए, तो इसका मतलब मेरा जो आइडियल फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इधर से भी समझ सकते हैं। नाउ इसके बाद मैं क्या करता हूँ, x + 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ। x + 3 को मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं मेरे पास कितने टर्म्स थे, मेरे पास 3 टर्म्स थे,
3 टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 2 टर्म्स में। ओके, ये क्या था, ट्राइनोमियल, अब ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ऑलराइट, बाइनोमियल में से अगेन मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, x+3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, x+4। ऑलराइट, नाउ ये क्या हो गया, एक सिंगल टर्म हो गया। ऑलराइट, नाउ दिस इज माई monomial. Okay, all right, so of course if you expand this you will get the 3 terms, of course 3 terms expression, but now what I am doing, I am just reducing the expression. so मैंने अपना expression reduce कर दिया और eventually जैसे हमने बोला था हम क्या करने वाले हैं, our objective was to transform our expression into factors. So इधर मेरे 2 factors आ गए, x+3, x+4. Alright, these are my 2 factors. So factors I can write it as a product of the expression. So ये 2 factor है. Now next step मेरे को क्या करना है, ये factors को लेके 0 से equate करना है, right? इसको मैंने 0 से equate कर दिया, इसको भी मैंने 0 से equate कर दिया. After that what I have to do? Now इधर मैं 0 से equate जो कर रहा हूँ, now इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से equate कर रहा हूँ. See here, अभी जैसे कि x+3, x+4 है, now इधर दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट में. लेट अस से x into y is equals to 0 है. now x into y 0 कब होगा, इधर x 0 हो या फिर y 0 हो, तभी x उनका प्रोडक्ट 0 होगा, राइट? सो या तो ये 0 बन जाए या तो इसकी वैल्यू 0 बन जाए, इसीलिए मैं लिखता हूँ x+3 is equals to 0 और दिस इज और, इधर दिस लाइन tells that it is or. okay, और x+4 is equals to 0. so x is, तब मैं क्या करता हूँ, जस्ट उधर उसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो it becomes -3, it becomes -4. so -3 -4 बन जाता है, and here are my 2 zeros, -3, -4 are my 2 zeros for p of x. so that is how I find my zeros of quadratic polynomial. alright, so ये पूरे मेथड को मैं कहता हूँ splitting the middle term or factorization, just expressing the polynomial into factors. alright students, let us take one more example. now इस example में आप देख सकते हो मेरे पास एक और polynomial given है, p of x is equals to x square minus 5x minus 14, right? सेम चीज करनी है, मेथड क्या था, पॉलिनोमियल को लेना है, उसको 0 के साथ इक्वेट करना है. ऑलराइट, उसके नीचे आपको अपना पॉलिनोमियल लिखना है इक्वल्स टू 0. उसके बाद मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है. फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. सो फर्स्ट लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आया, फर्स्ट लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आया -14x². ऑलराइट, नाउ ये जो -14x² आया है, I have to take only the number from here and avoid the other parts. So मैंने इधर से नंबर ले लिया है खाली 14, और मैं क्या करता हूँ, 14 को प्राइम फैक्टराइज करता हूँ और अपने 2 आइडियल फैक्टर्स निकालता हूँ. ऑलराइट, मैंने 14 को क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया. सो क्या हो गया, 2 7 7 1. सो मेरे 2 फैक्टर्स क्या आए, ये फैक्टर 1 आया, ये मेरा एक फैक्टर 2 आया, 2 into 7, राइट? नाउ अब मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है फैक्टर्स को अपने कंबाइन करके मेरे को चेक करना है कि मेरे 2 आइडियल फैक्टर्स कौन कौन से हैं. ऑलराइट, नाउ ये आइडियल फैक्टर्स की कंडीशन क्या थी, मेरे पास 2 कंडीशन थी. एक तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, इनका जो सम होना चाहिए. अब लेट अस से आई टेक माय फैक्टर एज 2x एंड 7x, 2x और 7x मैं लेता हूँ. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज दैट, ऑफ कोर्स लेट अस टेक दिस कंडीशन, जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने किया था. ये देखिए आप, फर्स्ट स्टेप हमने कर रखा है इधर, ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज -14x². तो 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, -14x² के इक्वल होना चाहिए. तो लेट अस से अगर मैं अपना आइडियल फैक्टर 2x और 7x लेता हूँ. गाइस इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, इसमें साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? बेसिकली मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ एज अ टर्म, सो टर्म में मेरा साइन होना चाहिए. ऑफ कोर्स इधर मैं जो साइन कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, इधर पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, प्लस कंसिडर कर रहा हूँ. अब दोनों को मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 14x². क्या मेरा 14x² फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है क्या, आप इधर देख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप. सो इधर मेरा जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है, -14x². So no, my product is -14x². Here I am getting +14x². So I can't take this as my ideal factors. So +2x
और प्लस 7x को मैं आइडियल फैक्टर नहीं ले सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं -2x प्लस 7x। -2x प्लस 7x अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो -14x स्क्वायर आ रहा है। सो अगेन ये नेगेटिव आ रहा है और मेरा फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, यस प्रोडक्ट इज नेगेटिव ऑफ कोर्स। हाँ, सो यस दिस स्टेप इज राइट, मैं इन दोनों को कंसिडर कर सकता हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। यस देर इज अ चांस आई कैन कंसिडर दीज टू एज माई फैक्टर। -2x और 7x को मैं कंसिडर कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। सिमिलरली 2x और -7x, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर से मेरे पास क्या आ रहा है, -14x स्क्वायर आ रहा है। सो मेरा फर्स्ट लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या था, -14x स्क्वायर। तो अगेन मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगेन देयर इज सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए मेरे आइडियल फैक्टर का, जो भी सम होना चाहिए, जो भी मेरे आइडियल, सेकंड केस में मेरे आइडियल फैक्टर क्या थे, फर्स्ट में +2x 7x, सेकंड केस में मेरे क्या थे -2x, सेकंड केस में मेरे क्या थे, लेट मी राइट इट हियर, सेकंड केस में मेरे आइडियल फैक्टर्स थे -2x 7x, फर्स्ट केस में थे +2x 7x और लास्ट केस में है 2x -7x। नाउ इनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं, किसका, आई हैड द पॉसिबिलिटी दैट दीज टू कुड बी माई आइडियल फैक्टर्स। सो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूं, आगे मैं इन दोनों को क्या करता हूं, आगे मैं और वेरीफाई करता हूं अपना सेकेंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन मेरा क्या कहता है, जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म मेरा क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म मेरा मेरे आइडियल फैक्टर के सम या डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो मेरा आइडियल फैक्टर अगर ये दोनों है 2x -7x, लेट अस से अगर मेरा आइडियल फैक्टर -2x प्लस 7x है। नाउ अगर मैं इनका एडिशन करता हूं तो -2x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 5x। सो क्या मेरा मिडिल टर्म 5x है, आप देख सकते हैं मेरा मिडिल टर्म है -5x, दिस इज -5x। सो क्या मेरा ये करेक्ट होगा, मेरा जो आइडियल फैक्टर है क्या ये करेक्ट होगा, -2x प्लस 7x, क्या ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा लास्ट ऑप्शन बचा 2x माइनस 7x। सो लेट अस कंसिडर दिस 2x माइनस 7x। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, -5x। मेरा मिडिल टर्म क्या है, -5x ही है। ऑलराइट, मेरा मिडिल टर्म भी क्या है, -5x ही, आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स माई आइडियल फैक्टर इज, दिस इज क्वालिफाइड फॉर माई आइडियल फैक्टर 2x माइनस 7x। ऑलराइट, तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर पुटअप कर देता हूँ ये -7x प्लस 2x, आप कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, कॉमन लेना है, x कॉमन ले लूंगा, x माइनस 7 बचेगा, इधर क्या ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, x माइनस 7, अगेन x माइनस 7, दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा मेरे को अंदर, इधर से मैंने x माइनस 7 ले लिया, इधर से भी x माइनस 7, आप उसको हाइड कर दो और देखो क्या बचता है, x बचेगा, इधर x बच गया तो वो लिख दो। इधर मैंने इसको कॉमन ले लिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो उसको इधर लिख दो। ठीक है, तो दो फैक्टर्स मेरे क्या बने, x माइनस 7 और दूसरा फैक्टर बना x प्लस 2। नाउ ये दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली आप क्या करो, 0 से इक्वेट कर दो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस कुड बी 0 और दिस कुड बी 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ उसको ट्रांसपोज करो, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2। सो दीज आर माई zeros of the given polynomial x square minus 5x minus 14. So this is how I find my zeros. Alright students, मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स सब लोग को घर जाके अपने मर्जी से एक बार ये आप मेथड खोल के करिए, और फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है देन यू वॉच द वीडियो। ओके, ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो आगे आपके लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। सो these are your homework problems. So I would like the students to do these homework problem at home, and आपको क्या करना है, इसके जो solutions हैं आपको comment section में मैसेज करना है, आंसर करना है। जो comment section में आंसर करेगा solution, मैं उनके मैसेज को हार्ट दे दूंगा। Alright students, with that note we'll end our today's lecture. I hope you have learned something. Do like the video, do subscribe the channel, on the notification button, share it with your friends. It will give me little motivation to make more such videos.
and improve content quality. Alright, please leave some of your suggestions also in the comment box. Alright, so with that note, we'll end this class today. Thank you all.